Hello students, welcome to my channel Grip to Science. Today we are going to complete our chapter Life Processes. The last topic of this chapter is excretion. In this video we are going to study excretion in plants and excretion in animals. In animals we will discuss both excretion in unicellular as well as in multicellular animals. So let's start the video. Various chemical reactions taking place within the body. Certain metabolic waste products are formed. Students, in our body various chemical reactions take place. हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी chemical reactions होती हैं. Like digestion of food, that is the chemical reaction. Then respiration, that is also a type of chemical reaction. In those chemical reactions, certain metabolic waste products are formed. The metabolic waste must be removed from the body for sustenance of life. हमारी लाइफ की सस्टेनेंस के लिए ये ज़रूरी है कि जितने भी वेस्ट हमारी बॉडी में बनते हैं दैट मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी. द एलिमिनेशन और रिमूवल ऑफ हार्मफुल एंड अनवांटेड metabolic waste, excess of salts and excess of water from the body is called excretion. हमारी बॉडी से जितने भी हार्मफुल या अनवांटेड मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, एक्सेस सॉल्ट्स हैं या एक्सेस वाटर है, उसको एलिमिनेट करना, बॉडी से बाहर निकालना, दैट प्रोसेस इज नोन एज excretion. So excretion is as important as digestion, respiration, circulation and reproduction. The organs associated with the process of excretion are called excretory organs. वो organs जो excretion की process के साथ जुड़े हुए हैं they are known as excretory organs. The unwanted substances that are excreted out of the body are called excretory products or waste products. वो substances, वो unwanted substances जो हमारी बॉडी से बाहर निकाले जाते हैं, जिनको हम बाहर थ्रो आउट करते हैं, those substances are, those products are excretory product or waste product. So excretory organs are those organs which are related with excretion or which help in the process of excretion, and the substances which we throw out, that are the excretory products or waste products. Major excretory organs in man and other vertebrates are kidney. हमारी बॉडी के अंदर मेजर excretory organ क्या है? किडनी. So kidney is the main excretory organ. Some other organs such as lungs, liver, large intestine and skin also eliminate certain metabolic waste beside normal function. कुछ organs और भी हैं हमारी बॉडी में, जैसे lungs, liver, large intestine and skin. ये भी अपने मेन फंक्शन के अलावा एक्सक्रीशन का काम भी करते हैं बिकॉज दे हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ सर्टेन मेटाबॉलिक वेस्ट. लाइक लंग्स में क्या है? ऑक्सीजन एंटर करती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है. ठीक है. स्किन दैट हेल्प इन द इवेपोरेशन. हमारी बॉडी से जो पसीना निकलता है दैट इज द लॉस ऑफ वाटर और लॉस ऑफ द वेरियस सॉल्ट्स. So skin also play an important role in excretion. So these organs are accessory excretory organ, or we can say these are the additional excretory organs. So main excretory organ is kidney, and additional and accessory excretory organs are lungs, liver, large intestine and skin. Next we will discuss the excretion in plants. The waste substances produced in metabolic processes of plants are disposed of as plant waste by the following methods. जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, जो भी मेटाबॉलिज्म है, वो प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है, बिकॉज प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग एज वेल एज एनिमल्स आर ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म. प्लांट्स के अंदर भी डाइजेशन होती है, रेस्पिरेशन होती है, सर्कुलेशन होती है. लाइकवाइज एनिमल्स के अंदर भी होती है. तो
तो प्लांट्स के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं उस दौरान कुछ वेस्ट सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं, तो उनको बाहर डिस्पोज ऑफ किया जाता है बाय वेरियस मेथड्स. देयर आर डिफरेंट मेथड्स फॉर दैट. फर्स्ट वन इज the major waste products produced by certain metabolic activities of plants are oxygen, carbon dioxide and water. मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या है प्लांट्स के अंदर? ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन कब प्रोड्यूस होती है? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड वाटर ऑल्सो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन और वी कैन से ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन. Excess salts are removed through hydrothods along with guttation of water. जो प्लांट्स के अंदर एक्सेस सॉल्ट्स होते हैं वो रिमूव होते हैं ड्यूरिंग गटेशन ऑफ वाटर थ्रू द हाइड्रोथोड्स. हाइड्रोथोड्स क्या है? पोर्स होते हैं. सो थ्रू दीज हाइड्रोथोड्स एक्सेस सॉल्ट्स आर रिमूव्ड. Many breakdown products are recycled in the synthesis of new metabolic products. बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो ब्रेकडाउन के दौरान बनते हैं और उनको रिसाइकिल किया जाता है. दैट्स व्हाई दे कैन प्रोड्यूस द न्यू मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स. मोस्ट ऑफ द टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक टैनिन्स, रेजिन्स एंड गम्स आर स्टोर्ड विद इन द डेड परमानेंट टिश्यू. बहुत सारे टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो हार्मफुल होते हैं लाइक टैनिन्स, रेजिन्स, गम्स. ये कहाँ स्टोर हो जाते हैं? परमानेंट टिश्यू में, डेड परमानेंट टिश्यू में स्टोर हो जाते हैं. और एक्चुअल में ये डेड परमानेंट टिश्यू क्या है? दैट्स जस्ट लाइक द नॉन फंक्शनल पार्ट. ओके. नेक्स्ट वन इज मैनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल्स. प्लांट सेल्स के अंदर आपको पता है कि प्लांट सेल के सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल होती है. तो बहुत सारे प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट जो है that are stored in the cellular vacuoles. Some waste substances are eliminated through petals, fruits and seeds. कुछ waste substances they are eliminated by petals. Petals क्या है? These are the colored leaves of the flower. तो petals, fruits और seeds के थ्रू भी बहुत सारा waste substance जो है वो निकलता है. Some of the waste get stored in the fruits. कुछ waste material जो है that is stored in the फ्रूट्स में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड नीडल लाइक क्रिस्टल्स की फॉर्म में स्टोर होता है. एंड दीज क्रिस्टल्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट. एंड व्हाट वी कॉल दीज क्रिस्टल्स? रैफिड्स. सो रैफिड्स आर द नीडल लाइक क्रिस्टल्स विच आर मेड अप ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट. Aquatic plants lose their waste products by diffusion directly into the water. जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं मीन्स वाटर लिविंग प्लांट्स हैं वो अपने वेस्ट प्रोडक्ट को कैसे लूज करते हैं? वो डायरेक्टली वाटर में डिफ्यूज कर देते हैं. व्हाट इज डिफ्यूजन? वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. प्लांट्स के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो ज़्यादा होता है और वाटर के अंदर कम होता है, तो वहाँ से वो बाहर की तरफ वाटर में डिफ्यूज आउट हो जाते हैं. Some excretive products such as latex, gums, essential oils are stored in old xylem. कुछ excretive product जैसे कि latex है, gum, some oils they are stored in the old xylem. Plants also excrete some waste substances into the soil around them. जिस soil के अंदर plants लगे हुए होते हैं तो कुछ waste substances वो soil में भी throw out कर देते हैं. The waste in the plants are categorized as. अब हमने डिस्कस किया कि किस किस तरह से प्लांट्स अपने अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर थ्रो आउट करते हैं. अब बेसिकली किस किस तरह का प्लांट्स के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं? दे आर इन 3 स्टेट्स. सॉलिड फॉर एग्जांपल रैफिड्स जो भी हमने क्रिस्टल्स की बात की, एंड रबर. लिक्विड्स लाइक इसेंशियल ऑयल्स, प्लांट्स में से ऑयल्स मिलते हैं आपको पता है. Then gases like carbon dioxide and oxygen. Carbon dioxide कब बनती है? During respiration, and oxygen during photosynthesis. So this was all about the excretion in plants. Now we will discuss the excretion in animals. First we will discuss the need for excretion. Students,
एनिमल्स आर मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव देन प्लांट्स. जो एनिमल्स के अंदर मेटाबॉलिक रेट होता है दैट इज वेरी हाई एज कंपेयर टू प्लांट्स. सो दे नीड वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स एंड मेथड्स ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट. तो जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, उसको बाहर निकालने के लिए एनिमल्स के अंदर एक प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है. सो व्हाट इज द नीड ऑफ एक्सक्रीशन? द एक्सक्रीटरी प्रोसेसेस प्ले एन important role in maintaining the various processes in our body, and first of that is homeostasis. Homeostasis means maintaining internal environment of the body constant. एक्सक्रीशन से हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस मेंटेन रहता है. मीन्स हमारी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो कांस्टेंट रहता है. कभी टेम्परेचर हाई कभी टेम्परेचर लो नहीं होता है. उस बैलेंस को बनाकर रखता है एक्सक्रीशन. सेकेंड वन, ऑस्मोटिक रिलेशनशिप बिटवीन ब्लड, लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड. जो ब्लड, लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड, हमारी बॉडी के अंदर 3 फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं, ब्लड, लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड. उनके बीच में एक बैलेंस बना के रखता है, ऑस्मोटिक रिलेशनशिप बना के रखता है. थर्ड वन, एसिड बेस बैलेंस इन द बॉडी. हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे एसिड्स भी हैं, बहुत सारे बेसिस भी हैं, तो उनके बीच में एक बैलेंस बना के रखता है, उनको न्यूट्रल करता रहता है. नेक्स्ट वन, ब्लड वॉल्यूम एंड कंपोजिशन कांस्टेंट. हमारे ब्लड का जो वॉल्यूम है और उसकी जो कंपोजिशन है, मींस उसके अंदर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है, जो सेल्स प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, उसको कांस्टेंट बनाए रखता है, इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होने देता. नेक्स्ट वन, several other physiological processes disturbance of which may lead to death of an individual. Excretion हमारी बॉडी के अंदर और बहुत सारी प्रोसेसेस हैं जिनको डिस्टर्ब होने से बचाता है. अगर ये ना हो तो उनके बीच में मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो जाएंगे, जिसकी वजह से किसी इंसान की डेथ भी हो सकती है. सो दैट्स वाई एक्सक्रीशन इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन आवर बॉडी, because we can say that it maintains the balance of our body. Next is the types of excretory products. During excretion, various types of products are eliminated. So first one is respiratory waste product. Respiration के दौरान क्या होता है? During respiration what happen? There is oxidation of food, यानी कि glucose and plus oxygen, and it form the carbon dioxide and water. So CO2 and water, that is the respiratory waste product. Second one is nitrogenous waste product like ammonia, urea, uric acid and amino acid. Third one, mineral salts. Excess of mineral salt is taken along with the food. हम food के साथ बहुत सारे mineral salts intake करते हैं. So that excess salts, they are eliminated along with sweat, urine or feces. Next one, water, which is eliminated along with urine, sweat, feces and expired air. Expired air means the air which is exhaled, जो हम बाहर छोड़ते हैं. Last one, pigments. These are eliminated in urine. Next we will discuss the excretion in unicellular organism. Unicellular organism means those organisms which have single cell, and here we will take the example of amoeba. In unicellular organism, excretory organs are not found. किसी भी unicellular organism के अंदर कोई proper excretory organ नहीं है, because they are made up of one cell, and that single cell perform all the functions: digestion, respiration, circulation, excretion, reproduction. So there is no specific organ for excretion. Ammonia and carbon dioxide are the excretory products. Unicellular organism के अंदर excretory product क्या है? Ammonia and carbon dioxide. They diffuse out of their body by simple diffusion. So by the process of diffusion, that ammonia and carbon dioxide is diffused out of the body. And diffusion is movement of particles from हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. बॉडी के अंदर इनकी कंसंट्रेशन हाई है, बाहर लो है, सो दे डिफ्यूज आउट फ्रॉम द बॉडी. इन फ्रेश वाटर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स
कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हेल्प्स इन ऑस्मोरेगुलेशन। जितने भी फ्रेश वाटर लिविंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होती है एंड दैट हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन। व्हाट इज ऑस्मोरेगुलेशन? वेरी इंपॉर्टेंट टर्म टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट कंटेंट इन द बॉडी। बॉडी के अंदर वाटर कंटेंट और सॉल्ट कंटेंट को कांस्टेंट बनाए रखना, दैट इज ऑस्मोरेगुलेशन। It removes, means the contractile vacuole that removes the excess of water that enters the body continuously. वाटर के अंदर ऑर्गेनिज्म रह रहा है तो बॉडी के अंदर कॉन्टिन्यूसली वाटर एंटर करता जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करती है? बॉडी में से एक्सेस वाटर को रिमूव करती रहती है। इट बर्स्ट आउट ऑन द बॉडी सरफेस टू रिलीज इट्स कंटेंट। इसके अंदर वाटर कंटेंट इंक्रीज होता जाता है और ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है ये सरफेस पर पहुंच जाती है, बॉडी सरफेस तक पहुंचती है और वहां जाकर ये बर्स्ट हो जाती है और वहां से जो एक्सेस कंटेंट है उसको रिलीज कर देती है। सी द पिक्चर इन द फर्स्ट स्टेप, सी द नंबर 1। फर्स्ट स्टेप पे देखो, वाटर एंटर्स ड्यू टू ऑस्मोसिस। वाटर के अंदर रह रही है ये बॉडी, ठीक है। कंसीडर दिस इज एन अमीबा, इट इज लिविंग इन द वाटर, सो द वाटर कंटेंट इज एंटरिंग ड्यू टू द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट फ्रॉम हाई टू लो। बाहर वाटर कंटेंट ज़्यादा है, बॉडी में कम है, तो वो अंदर एंटर कर रहा है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। सी द सेकेंड स्टेप, एक्सेस वाटर एंटर्स कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब जो ये एक्सेस वाटर अंदर एंटर कर गया है ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में एंटर कर जाता है। सी द थर्ड स्टेप, द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल स्वेल। आप किसी भी सॉफ्ट चीज़ को पानी के अंदर रखोगे तो वो फूल जाती है, तो अब ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है दैट स्वेल्स, इसका साइज इंक्रीज हो जाता है। द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मूव टू एज ऑफ द सेल। सी द फोर्थ स्टेप, अब ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मूव करती करती सेल के एंड तक आने लग जाती है, उसके किनारे तक आ जाती है। सी द फिफ्थ स्टेप, द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बर्स्ट एंड एक्सपेल्स द वाटर। अब ये इतनी ज़्यादा स्वॉलन हो जाती है दैट इट बर्स्ट, और ये एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव कर देती है, एक्सपेल आउट कर देती है, and that cycle is repeated. So this is how the excretion takes place in the unicellular organisms. Next is excretion in multicellular organisms. Here we will take the example of human beings. So let's start the excretion in multicellular organism. Means the organisms which have many number of cells. All the body organs which help the animal in excretion collectively constitute the excretory system. किसी भी एनिमल में एक्सक्रीशन की प्रोसेस के लिए जितने भी बॉडी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं। सो द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द एनिमल एंड स्पेशली द ह्यूमन बींग्स दैट कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट वन, kidney. So there are a pair of kidney, means there are two kidneys, left and right. Second one, a pair of ureters. Third, a urinary bladder. And last component of excretory system is urethra. So in excretory system we will study the kidneys, ureters, urinary bladder and urethra. Let's discuss them in detail. First we will discuss the kidney. This is the structure of kidney. How the kidney look like? Students, the kidney looks like just a bean. आप लोगों ने अपने घर में राजमा देखा होगा, bean. So the kidney resembles that bean. So keep in mind the bean. Bean की structure को, look को आप अपने mind में रखो. Kidneys of man are reddish brown. It is red in color, reddish brown in color, bean shaped, I told you, slightly flattened organs present just below the stomach. ये थोड़ा सा flat organ होता है और हमारे stomach के नीचे present होता है. One on either side of the vertebral column. जो हमारा vertebral column होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, उसकी दोनों साइड पर present होता है. Each kidney is about 10 centimeter long. इसकी लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर वाइड, 6 सेंटीमीटर चौड़ा है, एंड 3.5 सेंटीमीटर थिक,
और इसकी थिकनेस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर. सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ किडनी. द आउटर मार्जिन ऑफ द किडनी इज कन्वेक्स. किडनी का जो आउटर मार्जिन है, सी द पिक्चर, दैट इज इन convex shape and the inner margin is concave shape. See the shape of the kidney, the outer margin is convex and inner margin is concave. In the middle of inner concavity, जो अंदर वाला concave area है वहाँ के मिडल में देखो, सेंटर पॉइंट में देखो, there is present a notch. एक नोच प्रेजेंट है. नोच मीन्स आपने अगर घर में बीन भी देखा होगा, राजमा भी देखा हो, तो ऊपर से जब वो स्टार्ट होता है सेंटर में आके वो थोड़ा सा कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, नैरो हो जाता है. सो दैट इज ए नोच कॉल्ड हाइलस और हाइलम. इसमें भी देखो आपको अंदर वाली जो साइड है, कनकेव साइड, आपको सेंटर में एक नोच दिख रहा है, वहां पर आकर वो थोड़ा कंस्ट्रिक्ट हो रहा है. दैट नोच इज कॉल्ड हाइलस और हाइलम. आई हैव मार्क्ड इट इन द बॉक्स. हाइलम दैट इज मार्क्ड, बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है, दैट इज हाइलम. Hilus leads to a space called renal sinus. जो हाइलस होता है वहां पर एक स्पेस प्रेजेंट है विच इज नोन एज रीनल सीनस. इस स्पेस को हम कहते हैं रीनल सीनस. द रीनल आर्टरी, रीनल वेन, nerve fibers, lymph vessels and ureters enter or leave the kidney through the hilus. तो हम क्या कह सकते हैं कि हाइलस या हाइलम दैट इज लाइक ए ओपनिंग. ठीक है, यहाँ पर सभी आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स, वेसल्स, यूरेटर्स सब यहाँ पर एंटर भी कर रहे हैं और यहाँ से निकल रहे हैं. दैट इज जस्ट लाइक एन ओपनिंग. रीनल मीन्स किडनी. वेयर एवर यू read the term renal. Renal artery, renal vein, those arteries or veins which are related with kidney. So all these organs basically they may arise or leave from the hilus. यहाँ से निकलते भी हैं और यहाँ पर आकर अंदर एंटर भी करते हैं. Next is the histology of kidney. This was all about the outer look of the kidney, कि किडनी बाहर से कैसे लगती है. Now we will discuss the histology of kidney. Histology means internal structure of the kidney. What about the cells or tissues of the kidney? कि किडनी अंदर से उसकी सेल्स कैसी हैं, किस तरह की स्ट्रक्चर है उसकी. The kidney is bounded externally by white fibrous tissue called capsule. जो किडनी है वो बाहर से बाउंड की हुई है. बाहर से किसके थ्रू बाउंडेड है? By white fibrous tissue, and that white fibrous tissue is known as capsule. In each kidney, highly coiled tubules called uriniferous tubules or nephrons are present. किडनी के अंदर बहुत सारे ट्यूब्यूल्स मीन्स छोटी छोटी ट्यूब्स, ट्यूब्यूल्स मीन्स स्मॉल ट्यूब्स, बहुत सारी हाईली कॉइल्ड मीन्स उसमें बहुत ज़्यादा कॉइल्स होते हैं, स्ट्रेट नहीं होते वो क्योंकि वो बहुत लंबे होते हैं. ठीक है, तो उनको कॉइल्ड, वो कॉइल्ड फॉर्म में ही अंदर प्रेजेंट होते हैं. किडनी बहुत छोटी है इसलिए वो कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. एंड दीज ट्यूब्यूल्स आर नोन एज uriniferous tubules or we can say nephrons. Very important term. Nephron is the basic unit of kidney. Nephron is the structural unit of kidney. Nephron is the functional unit of kidney. Okay, so kidney is composed of nephron. In LS means longitudinal section. आपके पास किडनी है, आप उसको लंबाई में अगर कट करते हो, जैसे आपके पास एक बीन है, राजमा है, आप उसको सेंटर में से लंबाई में से कट करो, so that time the kidney is differentiated into two region. See the diagram? The kidney is differentiated into the two region. Which one? First, cortex. Cortex क्या है? The outer darker region. ये बाहर वाला darker region देखो, I have marked the cortex. That is the cortex. Second one, medulla. The inner lighter region. medulla भी मार्क किया हुआ है. जो inner portion है, lighter region है, that is medulla. So in the LS, the kidney is differentiated into two region, cortex and medulla. Cortex is the outer region और medulla क्या है? That is the inner region. Next we will discuss the structure of nephron. Very important topic. Nephron मैंने आपको अभी बताया, that is the basic unit of kidney, structural and functional unit of kidney. Each uriniferous tubule or nephron
is highly coiled tube-like structure. See the diagram. जो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल है या जो नेफ्रॉन है वो बहुत ज़्यादा coiled structure है. See the picture. This is the highly coiled tube-like structure. It is differentiated into two main parts. दो main parts हैं इसके. First one, Malpighian body और renal corpuscle. पहला पार्ट क्या है? Malpighian body या renal corpuscle जिसको हम कहते हैं. That is the upper part. Second one, renal tubule. जो नीचे सारा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज द रीनल ट्यूब्यूल. और जो अपर ये कप शेप स्ट्रक्चर है, दैट इज द माल्फीजियन बॉडी और रीनल कार्पसल. फर्स्ट वी विल डिस्कस द माल्फीजियन बॉडी और रीनल कार्पसल. इट लाइज इन द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी. माल्फीजियन बॉडी, अब जो मैंने आपको बताया कि किडनी क्या है, किडनी बहुत सारे नेफ्रॉन्स का बना हुआ है, ठीक है. इट मीन्स किडनी के अंदर क्या है, बहुत सारे नेफ्रॉन्स. और हमने बात की थी कि किडनी का जो आउटर रीजन है दैट इज कॉर्टेक्स और जो इनर रीजन है वो क्या है, मेडुला. तो जो नेफ्रॉन का माल्फीजियन बॉडी वाला पार्ट है यानी कि अपर पार्ट है वो कहाँ लोकेटेड है, दैट इज लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स यानी कि जो आउटर रीजन है वहां पर लोकेटेड है. इट इज फर्दर डिफ्रेंशिएटेड इनटू टू पार्ट्स. जो माल्फीजियन बॉडी है ये आगे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. विच वन? फर्स्ट, बोमेन्स कैप्सूल, डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर. जो बोमेन कैप्सूल है, फर्स्ट पार्ट है जो माल्फीजियन बॉडी का. एक्चुअली क्या है, आपको मैंने अभी शो किया था, द अपर कप शेप्ड स्ट्रक्चर और ये डबल वॉल्ड है. सेकेंड, ग्लोमेरुलस. इट इज ए नोट ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट इन द कप ऑफ बोमेन कैप्सूल. ऊपर सबसे ऊपर क्या है, बोमेन कैप्सूल, ठीक है, जो क्या है हमारा कप लाइक स्ट्रक्चर है. अब जो ये ग्लोमेरुलस है ये क्या है, इट इज ए नोट ऑफ कैपिलरीज. बहुत सारी कैपिलरीज इकट्ठी हो रही हैं कहाँ, बोमेन कैप्सूल में. इट इज फॉर्म्ड बाय द कैपिलरीज ऑफ इनकमिंग ब्लड वेसल्स एंड दैट ऑफ आउटगोइंग ब्लड वेसल्स. अब ये जो हमारा ग्लोमेरुलस है इसके अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज हैं. कौन कौन सी कैपिलरीज है, कुछ ब्लड वेसल्स आ रही हैं, कुछ वहां से जा रही हैं. जो ब्लड वेसल्स बोमेन कैप्सूल में एंटर कर रही हैं दे आर नोन एज एफरेंट आर्टेरियोल. एफरेंट, ए फॉर आना, ए फॉर एफरेंट. तो वो आर्टेरियोल्स विच आर एंटरिंग इन द बोमेन कैप्सूल दे आर द एफरेंट. और वो जो वहां से निकल रही हैं, एग्जिट कर रही हैं, E for exit, E for efferent. They are the efferent arterioles. So two type of arterioles are present there, afferent as well as efferent. See the picture. This is the upper part known as the Bowman capsule. This upper part is cup-like structure which is known as Bowman capsule. और Bowman capsule के अंदर हमारा क्या present है, glomerulus, जिसके अंदर बहुत सारी कैपिलरीज हैं. सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, द अपर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, जो कहाँ प्रेजेंट है, किडनी के कॉर्टेक्स में. सेकेंड पार्ट हमारा आता है रीनल ट्यूब्यूल. द बोमेन कैप्सूल लीड्स इनटू ए कोइल्ड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन कॉल्ड रीनल ट्यूब्यूल. अब बोमेन कैप्सूल के बाद जो हमारा सारा पार्ट दिख रहा है दैट इज जस्ट लाइक ए ट्यूब, जस्ट लाइक ए ट्यूब्यूल और पाइप, दैट पार्ट इज रीनल ट्यूब्यूल. मैंने पहले भी बताया था रीनल वर्ड इज रिलेटेड विद किडनी और एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है. तो बोमेन कैप्सूल के बाद जो सेकंड पार्ट हमारा आता है दैट इज द रीनल ट्यूब्यूल. इट इज फर्दर डिफरेंशिएटेड इन द फॉलोइंग थ्री पार्ट्स. अब जो रीनल ट्यूब्यूल है ये आगे तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट वन, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. सीधा पार्ट बॉक्स के अंदर मैंने हाईलाइट किया हुआ है. This part is the proximal convoluted tubule, PCT. यानी कि रीनल पार्ट ट्यूब्यूल का जो फर्स्ट पार्ट है, जो स्टार्टिंग पार्ट है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, PCT. सेकेंड वन, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, DCT, जो लास्ट पार्ट है. थर्ड वन आ जाएगा लूप ऑफ हेनले, जो हमारा मिडल पार्ट है, ठीक है. तो जो रीनल ट्यूब्यूल है दैट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. स्टार्टिंग पार्ट कौन सा है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. लास्ट पार्ट कौन सा है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. थर्ड पार्ट कौन सा है, लूप ऑफ हेनले. सो सेकेंड पार्ट ऑफ द
nephron is renal tubule. Now we will discuss them one by one. The first part of the renal tubule, which is proximal convoluted tubule. As I have told you that ये क्या है, उसका पहला पार्ट है, स्टार्टिंग वाला पार्ट है. It is highly coiled tubular part which lies in the cortex. Cortex कौन सा है? Outer region of kidney. तो ये पार्ट कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है. The cells lining this part have microvilli on free surface which increases surface area for absorption. जो हमारा proximal convoluted tubule है, इसकी जो cells होती हैं उन पर माइक्रोविलाई होती हैं, और माइक्रोविलाई का काम क्या है? एब्जॉर्ब करना. एक्चुअली माइक्रोविलाई और व्हाट, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती हैं उसमें भी माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं. तो माइक्रोविलाई क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं. फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं. जैसे आप अपनी फिंगर की हेल्प से किसी चीज़ को पकड़ सकते हो, ऐसे ही ये माइक्रोविलाई क्या करते हैं? खींचने का काम करते हैं, एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं. तो माइक्रोविलाई की वजह से यहाँ पर सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और ये अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकते हैं. सो दिस इज द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. नाउ द सेकेंड पार्ट इज लूप ऑफ हैनले, द मिडल पार्ट. It is U-shaped part of renal tubule. See the picture, the U-shaped part. U-shaped part दिख रहा है ना आपको? This is loop of Henle. It consists of descending limb. पहले जो limb नीचे आ रही है, U जहाँ से start हो रहा है, that is the descending limb. उसके बाद second जो नीचे से semicircle type है, that is hairpin loop and ascending limb. फिर एक limb ऊपर की तरफ जा रही है, that is the ascending limb. तो जो लूप ऑफ हैनले है उसके भी 3 पार्ट हो गए. ठीक है, डिसेंडिंग, हेयरपिन लूप और असेंडिंग लूप. इट इज फाउंड इन मेडुला ऑफ किडनी. अब लूप ऑफ हैनले कहाँ प्रेजेंट है? मेडुला में, यानी कि इनर पार्ट ऑफ किडनी में. थर्ड पार्ट इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. थर्ड पार्ट जो लास्ट पार्ट है दैट इज DCT. इट इज हाईली कॉइल्ड पार्ट फाउंड इन द कॉर्टेक्स ऑफ किडनी. ये भी कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्टेक्स में. तो सिर्फ एक ही पार्ट है जो हमने पीछे पढ़ा, लूप ऑफ हैनले, जो कहाँ प्रेजेंट है? मेडुला में. ऑल द अदर पार्ट्स आर लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स ऑफ किडनी. इट ओपन्स इनटू कलेक्टिंग ट्यूब्यूल. लास्ट में देखो कलेक्टिंग डक्ट लिखी हुई है. तो जितनी भी नेफ्रॉन्स की जो सारी कलेक्शन आएगी वो सारी की सारी कलेक्टिंग डक्ट में जाकर ओपन हो जाएगी. दिस ओपन एंड्स ऑफ सो मैनी नेफ्रॉन्स ओपन इनटू ए वाइडर ट्यूब्यूल कॉल्ड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल. तो जितने भी नेफ्रॉन्स होते हैं उनकी सब की ओपनिंग कहाँ पर आकर ख़त्म हो जाती है? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में. और यहाँ पर सारा यूरिन कलेक्ट हो जाता है. नेक्स्ट ऑर्गन वी विल डिस्कस दैट इज यूरेटर. दिस वाज ऑल अबाउट द किडनी. नेक्स्ट इज यूरेटर्स. यूरेटर्स आर ए पेयर ऑफ लॉन्ग ट्यूब्स which extend from kidney to the posterior surface of urinary bladder. See the diagram. यूरेटर जो बॉक्स में लिखा हुआ मैंने, यूरेटर क्या है? किडनी से एक पाइप लाइक, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक्सटेंड करती है. लेफ्ट किडनी से भी, राइट किडनी से भी. तो यूरेटर्स भी कितने हो गए? 2. ए पेयर ऑफ यूरेटर. ठीक है. अब किडनी से जब ये स्टार्ट होता है तो ये कहाँ पर जाकर रुकता है? यूरिनरी ब्लैडर के पोस्टीरियर सरफेस में. पोस्टीरियर सरफेस मतलब उसका जो पीछे वाला सरफेस है, एंटीरियर सरफेस जो आगे वाला जो आपको दिख रहा है, और पिछला जो है दैट इज पोस्टीरियर सरफेस. तो वहां पर आकर ये सारे यूरिन को कलेक्ट कर देता है. नेक्स्ट वन इज यूरिनरी ब्लैडर. थर्ड पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इज यूरिनरी ब्लैडर. द यूरिनरी ब्लैडर सर्व्स एज रिजर्वॉयर फॉर यूरिन. अब जो यूरिनरी ब्लैडर होता है इसमें आकर यूरिन इकट्ठा होता है. तो यूरिनरी ब्लैडर क्या है? ये एक रिजर्वॉयर है, स्टोर हाउस है ये यूरिन का, बिफोर इट लीव्स द बॉडी. सी द पिक्चर जो मैंने बॉक्स में लिखा है दैट इज द यूरिनरी ब्लैडर. ठीक है. तो ये क्या है? एक स्टोर हाउस है यूरिन का. जब तक हमारी बॉडी से यूरिन रिमूव नहीं होता है, बाहर नहीं निकलता है, तब तक वो यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा रहता है. नेक्स्ट इज यूरेथ्रा. फोर्थ पार्ट इज यूरेथ्रा. The urethra is a small tube leading from the floor of the bladder. Bladder means urinary bladder to the exterior. Urethra क्या है? एक छोटी सी ट्यूब है. नीचे देखो
मैंने मार्क किया हुआ है बोर्ड में, बॉक्स में। तो यूरेथ्रा क्या है, दिस इज द स्मॉल ट्यूब, और कहाँ से स्टार्ट हो रही है ये, यूरिनरी ब्लैडर से, ठीक है, और ये क्या करती है, यूरिन को बाहर निकालती है। सो दिस वाज द एक्सक्रीटरी सिस्टम. Next we will discuss the function of kidneys, or we can say the function of nephrons. First is excretion of nitrogenous waste product. हमारी बॉडी से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है, उनको बाहर रिमूव करना. सेकेंड वन, रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, बॉडी के अंदर वाटर को बैलेंस करके रखना. थर्ड वन, रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस. लास्ट वन, regulation of blood pressure. So these are the main four function of kidneys, or we can say nephrons. Next is the urine formation. Urine formation involves following events. Basically 4 steps होते हैं urine formation के अंदर. First one is ultrafiltration or glomerular filtration. Glomerulus हमने डिस्कस किया था, कहाँ पर है ये, बॉमन कैप्सूल में प्रेजेंट है. इट मीन्स ये स्टेप कहाँ होगा, ग्लोमेरुलस में होगा. तो पहला स्टेप क्या है हमारा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. सेकेंड वन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन. अब ये वाला पार्ट कहाँ होगा, ट्यूब में होगा, ठीक है. थर्ड वन, ट्यूबुलर सिक्रीशन. एंड फोर्थ वन, कंसंट्रेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन. सो दीज आर द मेन 4 steps which takes place in the urine formation. सी द पिक्चर. मैं आपको वन बाय वन एक एक स्टेप क्लियर करती हूँ. सो दिस इज द प्रोसेस हाउ यूरिन फॉर्मेशन टेक प्लेस. पहला स्टेप मैंने अभी बताया. फर्स्ट स्टेप इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और वी कैन से द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. वाटर एंड सॉल्यूट्स स्मॉलर देन प्रोटीन आर फोर्स्ड थ्रू द कैपिलरी वॉल्स एंड पोर्स ऑफ द ग्लोमेरुलर कैप्सूल इनटू द रीनल ट्यूब्यूल. ये देखो फर्स्ट पार्ट, ए जहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है. ग्लोमेरुलस है ये, ठीक है. तो यहाँ पर ये जो बोमन कैप्सूल है, बोमन कैप्सूल क्या है नेफ्रॉन का, इट एक्ट एज एन अल्ट्रा फिल्टर. ये अल्ट्रा फिल्टर की तरह काम करता है. अल्ट्रा फिल्टर का मतलब क्या है कि बहुत फाइन फिल्टर है ये. तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान क्या होता है, ऑल द सब्सटेंसेस डिसॉल्व्ड इन ब्लड प्लाज्मा, जितने भी सब्सटेंसेस ब्लड प्लाज्मा, ब्लड कैपिलरीज आ रही है ना, तो वहाँ से जो ब्लड आ रहा है उसमें जितने भी सब्सटेंसेस डिसॉल्व हैं वो सारे के सारे फिल्टर आउट हो जाते हैं, चाहे वो हार्मफुल है चाहे वो बेनिफिशियल है. तो बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जो सभी के सभी यहाँ से फिल्टर हो जाते हैं. लाइक यूरिया है, यूरिक एसिड है, ग्लूकोज है, ठीक है, अमीनो एसिड है, बहुत सारी प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, वो सब यहाँ से फिल्टर आउट हो जाते हैं. और फिल्टर आउट होकर जो बचता है उसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. ग्लोमेरुलस में फिल्टर हुआ है, हमने क्या कह दिया उसको, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, और वी कैन से नेफ्रिक फिल्ट्रेट. तो पहला स्टेप क्या है कि ग्लोमेरुलस में क्या होता है, सब कुछ फिल्टर आउट हो जाता है. वाटर के अलावा जितने भी इसमें सॉल्यूट्स हैं जो मैंने अभी बताया, प्रोटीन्स हैं, यूरिक एसिड जो भी हैं, वो सब के सब फिल्टर आउट हो जाते हैं. अब सेकंड बी हमारा स्टेप आता है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, या इसको हम सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन भी कहते हैं. फिल्टर आउट हो गया, निकल गया सब कुछ, हार्मफुल मटेरियल भी निकल गए, यूजफुल भी निकल गए. अब यूजफुल कैसे जाने दे, तो यूजफुल मटेरियल जो है वो सारे के सारे जहाँ पर बी पार्ट लिखा हो यहाँ पर दोबारा एब्जॉर्ब होते हैं. री एब्जॉर्प्शन, फिर से एब्जॉर्ब होते हैं. वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड नीडेड आयंस आर ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द फिल्ट्रेट इनटू द ट्यूब्यूल्स. वहाँ से जो फिल्ट्रेट बचा आया था हमारे पास, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आया था, वहाँ से दोबारा एब्जॉर्ब हो जाते हैं इन ट्यूब्यूल सेल्स में, और वो फिर से ब्लड कैपिलरीज में एंटर हो जाते हैं. कौन सी ब्लड कैपिलरीज में, जो यहाँ से निकलकर जाएंगी. निकलकर कौन सी जाएंगी, इफरेंट आर्टेरियोल. ई फॉर एग्जिट, ई फॉर इफरेंट. लेकर कौन आई थी, एफरेंट आर्टेरियोल. अब इसको वापस लेकर कौन जाएंगी, इफरेंट आर्टेरियोल. थर्ड हमारा आता है ट्यूबुलर सिक्रीशन. अब जो हाइड्रोजन आयन है, पोटेशियम आयन है, क्रिएटिनिन है, क्रिएटिनिन क्या है, दैट इज ए प्रोटीन, एंड ड्रग्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द पेरीट्यूबुलर ब्लड एंड सिक्रीटेड बाय द ट्यूब्यूल सेल्स इनटू द फिल्ट्रेट. अब होता क्या है, जो यहाँ पर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बच जाते हैं, द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स लेफ्ट इन द ब्लड कैपिलरीज आर सिक्रीटेड इन द यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय डिफ्यूजन. तो अब जितनी भी
प्रोटीन बच गई हैं या आयंस जो हमारे बच गए हैं वो यहाँ से सिक्रीट हो जाते हैं, सिक्रीटेड फ्रॉम द ब्लड इनटू द नेफ्रिक फिल्ट्रेट। ये यहाँ से कहाँ चले जाते हैं, किस में चले जाते हैं, जो हमारा नेफ्रिक फिल्ट्रेट बचा था। तो जो आयंस हैं वो यहाँ पर थर्ड स्टेप के अंदर जो आयंस हैं, कुछ प्रोटीन हैं और जो ड्रग्स होती हैं, जो मेडिसिन होती हैं, उनके जो वेस्ट होते हैं वो यहाँ से दोबारा फिल्ट्रेट में चले जाते हैं। एंड लास्ट वन, फोर्थ स्टेप इज कंसंट्रेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। कंसंट्रेशन मीन्स कि अगर हमारा जो वाटर कंसंट्रेशन है ब्लड के अंदर वो कम था तो यहाँ से बहुत सारा वाटर जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर उसमें वाटर की कंसंट्रेशन ठीक है तब कुछ भी रीएब्जॉर्ब नहीं होगा। अगर वाटर कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर कम है तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आया था या जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट आया था उसमें से वाटर को कुछ एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और इस वजह से बॉडी के अंदर वाटर कंटेंट और सॉल्ट कंटेंट में एक बैलेंस बना रहता है। तो ये जो इंटरनल बैलेंस मेंटेन किया जा रहा है बॉडी के अंदर वाटर का, दिस इज नोन एज ऑस्मोरेगुलेशन, विच इज द फोर्थ स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, सो इन यूरिन फॉर्मेशन देयर आर बेसिकली फोर स्टेप: ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, tubular secretion, and the last one concentration and osmoregulation. And osmoregulation means to maintain the water and salt content balance. बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस बना के रखना, सॉल्ट का बैलेंस बना के रखना, दिस इज द osmoregulation. So this is how urine is formed. Next is urine. The adult human body excretes on average 1 to 1.5 liter ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स। एक दिन के अंदर या 24 घंटे के अंदर 1 से लेके 1.5 लीटर्स तक यूरिन हमारी बॉडी एक्सक्रीट करती है। कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू ए पिगमेंट कॉल्ड यूरोक्रोम। यूरिन के अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज यूरोक्रोम। यूरिन है बिकॉज ऑफ यूरिया, सो द पिगमेंट इज यूरोक्रोम। यूरिन कंटेन्स 95% वाटर, 95% वाटर है एंड 5% डिजॉल्व्ड सॉलिड्स। कंपोजिशन ऑफ नॉर्मल यूरिन पर लीटर ऑफ यूरिन, 1 लीटर यूरिन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, वाटर 900 to 950 cc, यूरिया, यूरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, क्रिएटिनिन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ यूरिन। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल किडनी एंड हीमोडायलिसिस। द किडनी विच इज प्रेजेंट इन अवर बॉडी, दैट इज द नेचुरल किडनी. सो व्हाट इज द आर्टिफिशियल किडनी? The blood of a patient whose kidneys are completely damaged is filtered through a dialysis machine or dialyzer. जिन पेशेंट्स की किडनी खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो उनके ब्लड को फिल्टर कैसे किया जाता है? आर्टिफिशियली फिल्टर किया जाता है बाय ए मशीन नोन एज डायलाइजर और डायलाइजिंग मशीन। तो डायलाइजिंग मशीन या डायलाइजर के थ्रू उनकी ब्लड को फिल्टर किया जाता है। This is known as the artificial kidney. It removes urea and excess of salts from the blood. ये मशीन क्या करती है, ब्लड में से यूरिया और जितने भी एक्सेस सॉल्ट्स हैं उसको रिमूव कर देती है। मीन्स जो नेचुरल किडनी हमारी बॉडी के अंदर उसका फंक्शन परफॉर्म करती है ये मशीन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी और किडनी मशीन। ये क्या, एक आर्टिफिशियल किडनी है, ये किडनी मशीन है। The process of purifying blood by an artificial kidney is called hemodialysis. और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ब्लड को प्यूरिफाई करने की इस प्रोसेस को हम कहते हैं हीमोडायलिसिस। हीमो मीन्स ब्लड, हीमो किसके लिए स्टैंड करता है, ब्लड के लिए। डायलिसिस मीन्स फिल्ट्रेशन, तो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड दैट इज नोन एज हीमोडायलिसिस। प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस किस तरह से होता है, कुछ स्टेप्स हैं इसके। First one is blood of the patient is taken out from main artery, cooled to 0 degree Celsius and mixed with anticoagulant such as heparin. सबसे पहले क्या करते हैं, जो पेशेंट का ब्लड है उसको बाहर निकाला जाता है फ्रॉम द मेन आर्टरी और उसको कूल डाउन किया जाता है किस टेम्परेचर तक, टू 0 डिग्री सेल्सियस, और उसको मिक्स करते हैं एक प्रोटीन के साथ, हेपेरिन प्रोटीन के साथ, विच इज़ ए वेरी गुड एंटीकोगुलेंट जो ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देती। सेकेंड वन, ब्लड इज पम्प्ड इनटू एन आर्टिफिशियल किडनी। उसके बाद उस ब्लड को एक आर्टिफिशियल किडनी जो हमने अभी मशीन बताई है, डायलाइजिंग मशीन,
उसके अंदर पंप किया जाता है. Here blood flows from through channels or tubes formed of semi-permeable membrane of cellophane. Cellophane मटेरियल की बहुत सारी ट्यूब्स या चैनल्स बने होते हैं, उनमें से ब्लड फ्लो करता है और वहाँ से वो फिल्टर होता है. सी द पिक्चर. In the first diagram, blood from a patient with chronic renal failure मीन्स जिसकी किडनी फेल हो चुकी है, उसका ब्लड हमने लिया है, लेफ्ट साइड में रखा है, बीच में हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई है. उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से फिल्टर हो जाएगा, ये डायलिसिस हो जाएगा और राइट साइड पर कलेक्ट हो जाएगा. अब इधर देखो, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो पास हो जाता है वहाँ से और बाकी जो है वो फिल्टर हो जाता है. The cellophane tubes are kept in a dialyzing fluid which contains small solutes and mineral ions. अब ये जो cellophane tubes होती हैं, इसको हम किस में रखते हैं? डायलाइजिंग फ्लूइड में रखते हैं. उस डायलाइजिंग फ्लूइड में क्या है? कुछ सोल्यूट्स हैं, कुछ आयंस प्रेजेंट है. ठीक है, तो cellophane ट्यूब्यूल को कहाँ रखा जाता है? डायलाइजिंग फ्लूइड में रखा जाता है और उस फ्लूइड के अंदर कुछ सोल्यूट्स हैं, कुछ आयंस प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं फिल्ट्रेशन में. When the blood flows through these cellophane tubules or tubes, the nitrogenous waste like urea, uric acid, etc. diffuse out in the dialyzing fluid. अब जब इन जितनी भी ट्यूब्स हैं, जो cellophane की ट्यूब्स हैं, जब ब्लड इसमें से फ्लो करता है तो जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो वहाँ से निकल जाता है और बाकी फिल्टर हो जाता है. सी द पिक्चर. आर्टरी से हमने ब्लड लिया और वो हमने इस तरह से इन चैनल्स के थ्रू, ठीक है, ये जो ट्यूब्स हैं इनको हम चैनल्स भी कह रहे हैं, यहाँ से हमने पास किया और यहाँ पर ये फिल्टर हो जाएगा. लास्ट में हमारे पास एक फिल्टर ब्लड कलेक्ट हो गया है जिसको हमने वेन में इंजेक्ट कर दिया. नेक्स्ट इज द ब्लड दैट कम्स आउट ऑफ द आर्टिफिशियल किडनी इज प्योर ब्लड. अब डायलाइजर में से ब्लड प्यूरिफाई हो गया, अब जो ब्लड निकला वो प्योर है. अब क्या करेंगे हम? बॉडी का टेम्परेचर अलग है, बाहर का टेम्परेचर अलग है. उस प्योर ब्लड को हम बॉडी के टेम्परेचर तक लेकर आते हैं, वार्म करते हैं, बॉडी के टेम्परेचर तक लेकर आते हैं, एंड दैट इज मिक्स्ड विद एंटी हेपरिन. स्टार्टिंग में हमने क्या किया था? हेपरिन प्रोटीन के साथ मिक्स किया था. अब हमें क्या करना है? एंटी हेपरिन प्रोटीन के साथ मिक्स करना है ताकि वो अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाए, एंड इज रिटर्न टू द वेन ऑफ द पेशेंट. और जो पेशेंट की वेन्स है उसमें उसको एंटर कर देते हैं. सी द डायग्राम. दिस इज द डायलाइजर. हमने एक पेशेंट की बॉडी से ब्लड लिया और वो जाकर डायलाइजर में फिल्टर हुआ और उसके बाद वो दोबारा हमने उसकी वेन में उसको एंटर कर दिया. एंड द लास्ट वन इज हीमोडायलिसिस प्रोलोंग्स द लाइफ ऑफ यूरेमिक पेशेंट. जितने भी पेशेंट्स को किडनी की प्रॉब्लम होती है, एक्सक्रीटरी सिस्टम की प्रॉब्लम होती है, हीमोडायलिसिस की वजह से उनकी लाइफ जो है वो और लंबी हो जाती है. अदरवाइज आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर अगर वेस्ट हैं और वो अंदर इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाते हैं, एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं, देन इट लीड्स टू द डेथ. सो हीमोडायलिसिस प्ले a very important role for the uremic patients. So students, this was all about the excretion. Today we discussed about the excretion in plants as well as in animals. Thank you students. If you have any doubt, then you can ask in the comment section below. If you like this video, then please like and share it and subscribe to the channel for more such videos.